हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास एक्सीलेंस। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से डर लगता है क्या? मोल कॉन्सेप्ट, मोलार मास और एवोगैड्रो नंबर को लेकर कंफ्यूजन है क्या? देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2 को एकदम सिंपल वे में समझेंगे विथ इजी ट्रिक्स and solved examples. Okay, so without wasting much time, let's come to our topic, that is Dalton's atomic theory. See, in 1803, John Dalton, he proposed the first scientific theory about the structure of matter based on the behavior of gases and laws of chemical combination, and his theory was called as Dalton's atomic theory. It was the first step toward the understanding of structure of atoms. And according to Dalton's atomic theory, his postulates are that matter is made up of extremely smaller particles, and they were called as atoms. Atoms are called the indivisible and indestructible particles. Dalton told that that atoms cannot be created nor destroyed or converted into atoms of another element. Okay, so all the atoms of some गिवन एलिमेंट दे आर आइडेंटिकल इन मास. अगर हम लोग हाइड्रोजन 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 का एटम लेंगे तो 3 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम लेंगे तो क्या होगा? ऑल द गिवन एलिमेंट का जो एटम्स है दे आर having identical mass, size and other properties. And atoms of different elements have different mass, size and other properties. So compounds are formed when atoms they join together or combine together in a fixed whole number ratio. Chemical reactions, they involve the combination, the separation or the rearrangement of atoms, and these atoms are neither created nor destroyed in a chemical reaction, which is called as law of conservation of mass. Okay, which we have already dealt in our part 2, lecture 1 of this chapter, and I will also provide the link of the chapter 1, some basic concepts of chemistry, lecture 1 in the description box. Okay, just go through that part also. So here, limitations of Dalton's atomic theory. See, after giving his theory based on atom, still he failed to explain certain things. And what were his limitations or demerits? We will see. Dalton, he could not explain the divisibility of atoms because after certain period of time the subatomic particles were discovered. Okay, like electron was discovered by J.J. Thomson. Neutrons was discovered by Chadwick, all this. So Dalton, he failed. He told that atom was a indivisible particle, but in the atoms there are subatomic particles like electrons, protons, neutrons, and he could not explain the existence of isotopes as well, because we know hydrogen also has 3 isotopes, that is protonium, deuterium and tritium. So Dalton was not able to explain the existence of isotopes, and he could not explain the existence of isobars as well, and could not explain the nature of chemical bond, that why and how atoms combine to form compounds, and he could not explain the structure of the molecules. So his theory failed, and later modern atomic theory was discovered. Okay, this was about the Dalton's atomic theory. Next, coming to the modern atomic theory, see, with the discovery of subatomic particles like electron, proton and neutron, and advances in experimental techniques, Dalton's atomic theory was little bit modified and a modern view of atom was developed. So according to modern atomic theory, the atom is no longer considered the smallest indivisible particle of the element, and atoms have a complex structure. They are made up of smaller particles inside them, which are called as subatomic particles, and the atom consists of 3 subatomic particles, that is electron, proton and neutron. Electron are negatively charged particles, proton are positively charged particles, and neutron, they don't have any charge, they are neutral.
electrons are present in the shells or the energy levels around the nucleus, and proton and neutron, they are present inside the nucleus, and the nucleus has the entire mass of the atom, याद रखो. okay, so entire mass of the atom, it lies inside the nucleus, that is atomic mass. जो mass है atom का, atomic mass बोलते हैं, आगे पढ़ने वाले हम लोग. it is nothing but the number of protons plus number of neutrons which are present in the nucleus. okay, so size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom, and in a neutral atom number of protons are always equal to number of electrons, एक neutral atom में. okay, and atoms of same element, they have different mass, but due to different number of neutrons they are called as isotopes. since उनका neutrons क्या होता है, change होता है, प्रोटॉन सेम रहते हैं. तो एक ही एटम का, जैसे कि हाइड्रोजन का, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और एक हाइड्रोजन, इसका भी एटॉमिक नंबर 1, इसका भी एटॉमिक नंबर 1, बट इसका एटॉमिक मास 1 है, एक ही न्यूट्रॉन है. इसका एटॉमिक मास 2 है. ओके, एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया. इसका एटॉमिक मास 3 है, तो 2 न्यूट्रॉन्स आ गए. तो उसमें क्या होता है, इस केस में इधर 3 आइसोटोप बन गए, प्रोशियम, प्रोशियम, ड्यूटेरियम और ट्रिशियम बोलते. ओके, तो ये है तुम्हारा आइसोटोप का कॉन्सेप्ट जो क्लियर हुआ था मॉडर्न एटॉमिक थियरी में. सो मॉडिफिकेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी मैंने इधर दिया है, देखो. डाल्टन पोस्टुलेट सेज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स एंड दे वेर कॉल्ड एज एटम्स. बट मॉडर्न एटॉमिक थियरी ये बोलता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स विच आर डिविजिबल. ओके, indivisible नहीं है, and atoms they contain again further subatomic particles in them that are electrons, protons and neutrons. Dalton's atomic theory बोलता है कि all the atoms of a given element are identical in mass, size and other properties. और modern atomic theory क्या बोलता है, atoms of same element they can have different mass, क्योंकि डिफरेंट न्यूट्रॉन्स भी रह सकते हैं थोड़े एटम्स में, जैसे आइसोटोप्स, मैंने अभी हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया. ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स इज पॉसिबल. ओके, सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स नहीं रहते हैं, कुछ थोड़े एलिमेंट्स के आइसोटोप्स रहते हैं. कार्बन के है, फिर तुम्हारा carbon, hydrogen, okay, they have isotope, potassium and all. Next, according to Dalton's postulate, chemical reaction involves combination, separation and rearrangement of atoms. According to modern theory, chemical reaction involves rearrangement of atoms as well as rearrangement of electrons as well. Bonding कैसे होता है, compounds कैसे form होते हैं, compounds how they are formed due to combination of atoms. Okay, this is given. That like how atoms combine through loss, gain or sharing of electrons is very well explained in modern atomic theory. पता चला, ये था कुछ differences between Dalton's postulate and modern modification और modern atomic theory. Next आते हैं हम लोग, let's see atom, molecules, atomicity of molecules of elements and compounds. तो atom क्या है, देखो, we already know atom is the smallest particle of an element that retains all the chemical properties of that element, and it is the basic building block of matter. They are extremely small and cannot exist independently. Okay, तो ये मैंने इधर स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया है, हाउ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द एटम. नेक्स्ट, मॉलिक्यूल क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल. एग्जाम्पल, ऑक्सीजन, सिर्फ ओ रहने से एटम है वो. ऑक्सीजन एज अ मॉलिक्यूल O2 बोलते हैं हम लोग, O3 बोलते हैं, ओजोन. ओके, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, दीज आर एलिमेंट्स. ये एलिमेंट्स बोलते हैं मॉलिक्यूल में, और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स. नेक्स्ट होता है एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स. ये कैसे होता है, डिफरेंट एटम्स कंबाइन करके, H2O, अमोनिया,
NH3, वाटर H2O, नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये सारे तुम्हारे कंपाउंड्स होते हैं. ओके, सो द मॉलिक्यूल में कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम्स, उसको एलिमेंट बोलते हैं सेम काइंड ऑफ एटम्स को, एंड और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स जॉइन टुगेदर और कंबाइन टुगेदर उसको कंपाउंड्स बोलते हैं. समझ में आया? सेम काइंड ऑफ एटम्स दे आर कॉल्ड एज एलिमेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम दे आर कॉल्ड एज कंपाउंड. आई हैव गिवन एग्जाम्पल ऑल्सो हियर. Next, see atomicity. What is atomicity? The number of atoms which are present in one molecule of an element is called as atomicity. जैसे कि एग्जाम्पल में हाइड्रोजन H2, ये देखो कितने एटम्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम्स 2 एटम प्रेजेंट है, तो 2 एटम्स है तो डाई एटॉमिक बोलते हैं हम लोग. O3 ओजोन 3 एटम प्रेजेंट है, ट्राई एटॉमिक. फॉस्फोरस P4 उसमें 4 एटम प्रेजेंट है, टेट्रा एटॉमिक. S8 सल्फर 8, ओके, S8 उसको हम लोग ऑक्टा एटॉमिक बोलते हैं. बेस्ड ऑन यूअर एटॉमिसिटी ऐसे हम लोग इसको याद करते हैं. देखो मोनो मतलब 1 एटम, डाई मतलब 2 एटम, ट्राई मतलब 3 एटम. जैसे इधर से ऑक्टा तक मैंने दिया है. हियर ऑल्सो आई हैव गिवन, यू कैन जस्ट रेफर दिस. ओके, so this was about the atomicity. Here we'll see molecules of elements and compounds. See molecules of elements and compounds, already I told you what it is. Same, if molecules are made up of same kind of atoms or same kind of elements, they are called as molecule of elements. Molecules which are made of different kind of atoms of different elements, then they are called as molecule of compounds. पता चला? जैसे हाइड्रोजन H2O2 सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इधर सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं. वो कितने भी एटॉमिसिटी में रहने दो, 2, 3, 4 कितने में भी रहने दो, बट उसको क्या है? सेम एटम रहना है. हाइड्रोजन है तो सिर्फ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है तो सिर्फ ऑक्सीजन, ऐसे सेम एटम रहना चाहिए. अभी कंपाउंड्स में क्या है? 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स दे जॉइन टुगेदर, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स. जैसे कि वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है, और इसका एटॉमिसिटी देखो कितने एटम्स प्रेजेंट है? 2 हाइड्रोजन के प्रेजेंट है एंड 1 ऑक्सीजन. टोटली कितने हुए? 3 एटम्स प्रेजेंट है. ट्राई एटॉमिक है. कार्बन डाइऑक्साइड अगेन 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, ट्राई एटॉमिक. अमोनिया NH3 1 नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन, टोटल कितने हुए? 4 एटम्स, दैट इज टेट्रा एटॉमिक. समझ में आया? ऐसे CH4 5 है एटम्स है, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, दैट इज पेंटा एटॉमिक. एटॉमिसिटी 5 है उसका. इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स. गॉट? सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ना पता लगाओ कि क्या है करके, देन ओनली यू कैन जम्प टू स्टोइक्योमेट्री और कैलकुलेशन थिंग्स. ओके, यू शुड नो व्हाट आर दिस बेसिक थिंग्स. एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं, एटॉमिसिटी क्या होता है, ऑल दिस थिंग्स. ओके, दीज आर बेसिक थिंग्स to solve the numericals as well. Next is coming to ions. See, ions are atoms or group of atoms that has lost or gained the electrons, 1 or more electrons, and they carry net charge on them. जैसे तुमने कुछ देखा होगा H plus, OH minus, NH3 plus, ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, CO2 माइनस, ऐसे ये सारे तुम्हारे क्या बोलते हैं? इसको हम लोग आयॉन्स बोलते हैं. ओके, दे हैव आइदर गेन्ड और दे हैव लॉस्ट 2 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स in them, and they carry, since losing or gaining, they will carry what? A net charge on them. They are called as ions. जैसे कि इसमें 2 टाइप रहते हैं, कैटायंस रहते हैं, एनायंस रहते हैं. ओके, कैटायंस मतलब याद रखो पॉजिटिव आयंस होते हैं, एनायंस मतलब क्या होते हैं? नेगेटिव आयंस होते हैं. So positively charged ions are called as cations, and how they are formed? They are formed by losing the electrons. याद रखो E माइनस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है. अगर बाय चांस से नेगेटिव चार्ज चला गया, ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा. मतलब when
there is a loss of one or more electron, what will form? cations will form. loss से होता है. ओके वैसे ही सिमिलर वे में देखो इलेक्ट्रॉन्स माइनस है, अगर और माइनस चार्ज तुम लोग इसको देंगे तो क्या होगा? और माइनस माइनस ज़्यादा होते जाएगा उसका माइनस चार्ज, हाँ ना, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा. सो गेन होगा इधर, इसमें एनायंस में क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा. ये याद रखो फर्स्ट, कैटायंस क्या होते हैं, एनायंस क्या होते हैं. ओके एंड कैटायंस दे आर मेनली फॉर्म्ड बाय मेटल्स, याद रखो. एग्जाम्पल मैंने इधर दिया है देखो, सोडियम Na प्लस बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है. मैग्नीशियम Mg2 प्लस, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया है. नेक्स्ट एल्यूमिनियम Al3 प्लस, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया है. ओके so these are your cations, mainly metals they form the cations, और anions are formed by non metals. याद रखो बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स लेता है. ओके ये इलेक्ट्रॉन्स लेता है, वो क्या करता था? कैटायंस इलेक्ट्रॉन्स देता है. ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, याद रखो एनायंस. ओके इलेक्ट्रॉन इसने एक लिया तो ये क्या बना? Cl माइनस. ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिया तो O2 माइनस. सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिया तो S2 माइनस. ऐसे ओके दीज आर मेनली फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल्स. देखो क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, दीज आर नॉन मेटल्स, दे आर गैसेस. ओके याद रखो. ये था कैटायंस एंड एनायंस. नेक्स्ट इज पॉलीएटॉमिक आयंस. क्या होते हैं? देखो आयंस दैट आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स विच आर बॉन्डेड कोवैलेंटली together, they are called as polyatomic ions and they behave as a single charge species. एक स्पीसीज जैसे वर्क करते हैं. जैसे कि मैंने इधर कुछ एग्जाम्पल दिया है. अमोनियम क्या होता है? NH4 प्लस. वो क्या था? सिंगल था, कैटायंस और एनायंस. जब 2 या 2 और मोर एटम्स दे आर कोवैलेंटली बॉन्डेड, और तभी जब आयंस बनते हैं. ओके दैट आर कॉल्ड एज योर पॉलीएटॉमिक आयंस. जैसे कि देखो इसमें नाइट्रोजन भी है, इसमें हाइड्रोजन का भी है. दे आर बॉन्डेड कोवैलेंटली और इसके ऊपर एक नेट चार्ज स्पीसीज भी है. नेट चार्ज एज अ होल एक सिंगल स्पीसीज के जैसे वर्क करता है NH4 प्लस. ओके इसको अमोनियम बोलते हैं. प्लस मतलब +1 हाइड्रोनियम H3O प्लस, मतलब इसके ऊपर भी +1 चार्ज है. मर्क्यूरी Hg2 2 प्लस, इसमें भी +1 चार्ज है. 1 प्लस है. 1 प्लस है, हाँ 1 प्लस याद रखो. मर्क्यूरस आयन. सिल्वर Ag प्लस +1 चार्ज, दैट इज सिल्वर आयन. ऐसे सेम टाइप में ये पॉलीएटॉमिक कैटायंस थे. ये क्या है तुम्हारे? पॉलीएटॉमिक एनायंस. देखते हैं कौन से है. हाइड्रोक्साइड OH माइनस -1, NO3 माइनस नाइट्रेट. देखो इनका नाम याद रखो ये क्या है करके. कार्बन CO3 2 माइनस -2 चार्ज. बाइकार्बोनेट HCO3. देखो हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, तीनों एक साथ बॉन्ड हुए हैं और माइनस चार्ज है एज अ नेट चार्ज उसके ऊपर. ओके सिंगल स्पीसीज जैसे, इसको बाइकार्बोनेट आयन बोलते हैं. फॉस्फेट दैट इज -3 चार्ज लेता है, फॉस्फेट आयन बोलते हैं. सल्फेट इधर 2 -2 चार्ज है, सल्फेट आयन बोलते हैं. सो दीज वेर यूर पॉलीएटॉमिक कैटायंस प्लस चार्ज होते हैं. पॉलीएटॉमिक कैटायंस मतलब पॉजिटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन्स देता है ये. ओके और पॉलीएटॉमिक एनायंस मतलब इलेक्ट्रॉन्स लेता है, माइनस चार्ज रहता है एनायंस के ऊपर. याद रखो ये. सो मेटल्स मेनली तुम्हारे कैटायंस होते हैं, नॉन मेटल्स नॉर्मली एनायंस होते हैं. समझ में आया. एंड पॉलीएटॉमिक आयंस दे एक्ट एज अ सिंगल स्पीसीज और सिंगल यूनिट, एज अ होल उसके ऊपर चार्ज रहता है. ओके सो दैट वाज अबाउट आयंस. नेक्स्ट कमिंग टू एटॉमिक मास. एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट. याद रखो यूजुअली इट इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट AMU में, या फिर यूनिफाइड मास U करके भी लिखते हैं AMU या
यू करके लिखते हैं, यूनिफाइड मास. सो इट इज़ द 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. इसको हम लोग बेस करके लेते हैं, C12 आइसोटोप को. कार्बन 12 आइसोटोप इज द बेस. सो 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज टेकन एज द एटॉमिक मास यूनिट. Okay, so it is, this atomic mass is measured, but it is not the convenient to use because it is extremely small for an atom. So we take relative atomic mass, which is a ratio of, अब देखेंगे क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास. इट इज़ एक्चुअली अ रेशियो एंड इट डज नॉट हैव एनी यूनिट. इट इज़ नथिंग बट रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, देखो. It is the mass of an element which is the weighted average mass of the atom कंपेयर करते हैं किसके साथ, 1/12 द मास ऑफ द कार्बन 12 एटम. देखो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम. याद रखो ये होता है तुम्हारा रिलेटिव एटॉमिक मास. फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है. ओके, सो इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी बिकॉज इट इज़ एन रेशियो. इधर भी मास इधर भी मास, मास जो है वो यूनिट उसका कट हो जाता है सेम यूनिट रहने के कारण. एंड इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड इट टेल्स हाउ मैनी टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ द C12 एटम. It is obtained from mass spectrometry experiments. याद रखो, for most element रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ नॉट अ होल नंबर. बहुत सारे एलिमेंट को जो है जो रिलेटिव एटॉमिक मास रहता है ना, इट इज़ नॉट अ होल नंबर. क्यों? क्योंकि थोड़े एलिमेंट्स जो रहते हैं दे जस्ट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइसोटोप्स, जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन, कार्बन. ओके, हाइड्रोजन का तो 1 यूनिट है वो चलेगा, कार्बन का भी 12 यूनिट्स है वो भी चलेगा, बट क्लोरीन का भी एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. उसका हम वो जो रिलेटिव एटॉमिक मास है डेसिमल में आता है, होल नंबर में नहीं आता है. ओके, सो एवरेज एटॉमिक मास है. देखो दिस इज मोस्ट एलिमेंट्स दे एग्जिस्ट इन द नेचर एज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर आइसोटोप्स. सो द एवरेज एटॉमिक मास इज द वेटेड मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट. एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. देखो इधर क्लोरीन का मैंने एग्जाम्पल लिया है. इफ़ सपोज क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, Cl35 और Cl37. ओके, तो इसका जो आइसोटोपिक मास है इसका 34.9 ऑलमोस्ट 35 रहता है, इसका 36.97 रहता है. तो नेचुरल अबंडेंस इन द एनवायरनमेंट इधर कैसे कितना रहता है, देखो प्रेजेंट रहता है 35. क्लोरीन जो है क्लोरीन 35 75.77% है इन अबंडेंस. ओके, एंड जो क्लोरीन 37 है 24.23% है. आउट ऑफ 100 लेंगे तो 75.77% में है ना, डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो 0.7577 आएगा. ये होगा फ्रैक्शनल अबंडेंस. हमने इसका फ्रैक्शनल अबंडेंस कैलकुलेट किया है. तो इसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, इधर मैंने फॉर्मूला दिया है. देखो मास ऑफ दैट isotope into fractional abundance plus mass of second isotope into fractional abundance of second isotope. ऐसे कितने आइसोटोप है वो सारे उसके मास इंटू फ्रैक्शनल अबंडेंस करके सारे को हम लोग ऐड करेंगे, सम करेंगे. ओके, वो हमें क्या देगा, एवरेज एटॉमिक मास देगा. क्या देगा, एवरेज एटॉमिक मास. ओके, इधर देखो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कैसे कैलकुलेट किया है, 34.97 दिस मल्टीप्लाइड बाय इनटू ये किया है. ओके, एंड 36.97 ये मल्टीप्लाइड बाय 0.2423 किया है. देखो, और दोनों को क्या किया है, बाद में ऐड किया है, सम किया है. दैट इज आंसर हमें कितना मिलता है, 35.46 यूनिट्स. ये होगा उसका एवरेज एटॉमिक मास ऑफ टोटल एलिमेंट दैट इज क्लोरीन. सिंस क्लोरीन इज प्रेजेंट इन 2 फॉर्म्स, 2 आइसोटोप्स के फॉर्म में प्रेजेंट है नेचुरली, तो हम लोग उसका एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं. ऐसे जो भी एलिमेंट आइसोटोप्स के फॉर्म में प्रेजेंट है उसका हम लोग
एवरेज एटॉमिक मास कंसीडर करते हैं। समझ में आया? दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। मैंने एक एग्जांपल में क्लोरीन दिया है तुम लोगों को। ओके, सो इसका टोटल रिलेटिव एटॉमिक मास फाइनली कितना आता है क्लोरीन का? 35.46 यूनिट। एंड इफ एन एलिमेंट हैज़ ओनली वन आइसोटोप, तभी हम लोग उसका एटॉमिक मास क्या लेते हैं? सेम एज रिलेटिव एटॉमिक मास, जो भी उसका मास है वो ही लेते हैं हम लोग। जैसे कि अभी सोडियम का 23 है तो 23 लेते हैं। ओके, so relative atomic mass, it helps in calculating molar mass, the empirical formula, molecular formula and many other chemical calculations which we will see here in the next part. Okay, always use the fractional abundance in decimal and not percentage while calculating average atomic mass. हाँ याद रखो, इधर ना ये नेचुरल अबंडेंस परसेंटेज में मत रखो। ओके, परसेंटेज में रखोगे तो इंटू 100 करना पड़ेगा, कि उससे पहले ही तुम लोग डिवाइडेड बाय 100 करके फ्रैक्शनल अबंडेंस करके लो इसको, और उसके बाद कैलकुलेट करो तो इजी होगा तुम्हें सॉल्व करने के लिए। गॉट? ये था तुम्हारा एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बारे में। अभी आते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स विच आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। वो क्या था? एटॉमिक मास सिंगल एटम के लिए था। ओके, आइसोटोप्स वो सिंगल एटम के लिए था, जो भी है सिंगल एलिमेंट के लिए। अभी हम लोग मॉलिक्यूल्स के लिए देखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल वाटर होता है, H2O होता है। ओके, H2O में क्या प्रेजेंट है? 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का कितना है? 2 इंटू एक हाइड्रोजन का 1 यूनिट होता है, और ऑक्सीजन का 1 इंटू एक ऑक्सीजन का 16 यूनिट्स होता है। दैट इज़ इसका 16 यूनिट्स आया और इसका 2 यूनिट्स आया। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना आएगा? 18 यूनिट्स। दैट इज सी हियर 18 यूनिट्स। ओके, मैंने एज अ होल नंबर लिया है, वो लोगों ने एग्जैक्टली दिया है इधर 1.008 है करके। यू कैन टेक एज 1 यूनिट, नो प्रॉब्लम। ओके, सो इधर टोटली इसका फाइनली कितना आता है? 18 यूनिट्स। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। इट अप्लाइज टू कोवलेंट कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स, जैसे कि H2O, NO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, इसको सभी अप्लाई होता है। डज नॉट अप्लाई टू आयोनिक कंपाउंड्स ऑल्सो, they do not exist as molecules। याद रखो। ओके, तो ये था मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट होता है फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स के केस में लेते हैं, ऊपर मॉलिक्यूलर मास हम लोग कोवलेंट कंपाउंड्स के केस में लेते हैं। ओके, दोनों सेम है। फॉर्मूला मास इतना ही है कि इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मास, सेम लाइक योर मॉलिक्यूलर मास ओनली, कैलकुलेशन भी सेम है, जस्ट इट इज़ यूज्ड फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। याद रखो, इट इज़ यूज्ड फॉर आयोनिक कंपाउंड्स एंड दोज मॉलिक्यूलर मास वाज यूज्ड फॉर कोवलेंट कंपाउंड। उतना ही डिफरेंस है। एंड इट दिस फॉर्मूला मास यूनिट इज़ ऑल्सो यू। तो ये देखो, आयोनिक कंपाउंड एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, सोडियम क्लोराइड NaCl। फॉर्मूला मास इसका क्या होगा? कितना? NaCl कितना Na है? सोडियम कितना है? 1 सोडियम, विल राइट हियर 1 सोडियम एंड 1 क्लोरीन। एक सोडियम का 23 यूनिट्स और एक क्लोरीन का 35.45 यूनिट्स। तो दोनों को ऐड करो, तुम्हें मिलेगा 58.44 यूनिट्स, इतना मिलेगा। ये है तुम्हारा फॉर्मूला मास फॉर एन NaCl आयोनिक कंपाउंड। ओके, सो मॉलिक्यूलर मास is used for covalent compound whereas formula mass is used for ionic compounds। ये याद रखो, इधर मैंने लिखा है, देखो ये याद रखो, इधर इम्पॉर्टेंट, कोवलेंट कंपाउंड के लिए या आयोनिक कंपाउंड के लिए डिफरेंस में लिखा है मैंने। नेक्स्ट कमिंग टू फॉर्मूला कैलकुलेशंस, सेम मैंने जैसे बताया अभी वही सेम पैटर्न में, जस्ट सी द स्टेप्स। इधर दो मैंने एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल मैं करती हूँ। देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, क्या क्या है इसमें? कैल्शियम, 1 कैल्शियम, 1 कार्बन एंड 3 ऑक्सीजन। एक कैल्शियम का कितना होता है? 40 यूनिट्स होता है, 1 इंटू 40। ओके, एक कार्बन का कितना होता है? 12 यूनिट्स होता है, 1 इंटू 12। नेक्स्ट
एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16 यूनिट्स होता है, बट कितने ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है, बाद में सभी को ऐड करने का 40 + 12 + 48, 40 + 12 + 48, योर आंसर विल बी ऑलमोस्ट 100 यूनिट्स। समझ में आया? ऐसे कैलकुलेट करते, स्प्लिट करो, एक मॉलिक्यूल को स्प्लिट करो, कैल्शियम कार्बोनेट, एक कैल्शियम है, एक कार्बन है, 3 ऑक्सीजन एटम्स है, ओके, और एक एक एटम का तुम लोग वैल्यू याद रखो। ऐसे अभी वैल्यूज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। जैसे जैसे तुम लोग देखो स्लोली कैलकुलेट करते जाएंगे, यू विल बी फेमिलियर विथ सम मॉलिक्यूल, सम कंपाउंड्स, और उसमें कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, सल्फर, ये सारे रिपीटेडली बार बार तुम लोग इसके साथ कैलकुलेशंस करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें याद हो जाएगा। नहीं याद हो रहा है तो जस्ट राइट इन अ पेज, just try to remember it daily, practice for 5 minutes daily, ओके, तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कैल्शियम का 40 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है। बाई चांस एग्ज़ाम में नहीं दिया है तो भी तुम्हें याद रखना है ये यूनिट्स इसके। समझ में आया कि कितना वेट है इसका, कितना मास है, एटॉमिक मास है हर एक एलिमेंट का, याद रखो। नेक्स्ट ऐसे कैलकुलेट करते हैं। आई हैव गिवन इट इन द स्टेप वाइज ऑल्सो, स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 2 क्या करना है, टिल स्टेप 4। तो ये उसका वे है, कैल्शियम कार्बोनेट, सेम वे में अमोनिया, एक नाइट्रोजन है प्लस 3 हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का 14 होता है, 1 × 14 होगा, और 3 हाइड्रोजन का 3 × 1, एक हाइड्रोजन का 1, तो टोटली इसका 17 ग्राम्स आएगा। फाइनली दोनों को ऐड करना है। नेक्स्ट ये है तुम्हारा कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मूला यूनिट मास of the compounds or molecules. Next, coming to the mole concept, a very important part of this chapter, okay. मेनली इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं तुम्हारे एक्सरसाइज क्वेश्चन में, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ज़्यादातर तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्री के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हैं। I will just bring another video where we will solve only numericals which are related to mole concept, molarity, molality, stoichiometric things and all, okay। तो separate इसमें सिखाऊंगी मैं एक separate video में। ये अभी we are just seeing the explanation part of the notes, तो I have already included one example here in my notes, okay। So using one example we will try to understand the concepts. See, mole concept, it is the mole is the फर्स्ट, व्हाट इज़ मोल? मोल क्या है देखते हैं हम लोग, ओके। एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स, दैट पार्टिकल्स कैन बी, इट कैन बी एटम्स, इट कैन बी मॉलिक्यूल्स, इट कैन बी आयन्स, और इट कैन बी कंपाउंड्स, एनीथिंग, एज देयर आर एटम्स इन अ ग्राम 12 of carbon 12 atom. It is denoted by the symbol mole, MOL, okay। basic fundamental unit क्या है? amount of substance, amount of substance देखा था ना हमने बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में क्या है, ये तुम्हारा 7 क्वांटिटीज़ में ये भी एक आता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ अ काउंटिंग यूनिट एंड हेल्प्स अस टू रिलेट द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड लाइक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विद द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, ओके, याद रखो। नेक्स्ट, 1 मोल, इधर डेफिनेशन दिया है देखो मैंने, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज और पार्टिकल्स, दे कैन बी एटम्स, दे कैन बी मॉलिक्यूल्स, दे कैन बी आयन्स, एज देयर आर प्रेजेंट इन द 12 ग्राम ऑफ carbon 12 atom, okay। this is the definition for mole. So why mole concept is important? It gives or it expresses a very large number of particles in a convenient way to perform stoichiometric calculations easily, okay, and to relate mass, number of particles and volume of gases. हम लोग डायरेक्टली जंप कर मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर डायरेक्टली जंप करने से पहले थोड़े थिंग्स पढ़ लेते हैं कि क्या है करके, जैसे कि अवोगैड्रो कांस्टेंट। अवोगैड्रो कांस्टेंट क्या होता है देखो, that is the number of particles which is present in 1 mole of any substance। एक मोल में कितना पार्टिकल्स प्रेजेंट है
1 मोल में दैट इज़ कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज एवोगैड्रो कांस्टेंट. ओके, Na बोलते हैं हम लोग इसको. N सुपरस्क्रिप्ट में A आता है. Na that is Na is equal to 6.022 into 10 to power 23 पर मोल. एक मोल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं? 6.022 into 10 to power 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं एक मोल में, इसीलिए पर मोल बोलते हैं हम लोग. 1 मोल में इतने पार्टिकल्स. पार्टिकल्स मतलब दे कैन बी एटम्स, दे कैन बी मॉलिक्यूल्स, दे कैन बी आयन्स एज वेल. कुछ भी हो सकता है पार्टिकल्स मतलब, याद रखो. समझ में आया? दे कैन बी एटम्स, दे कैन बी मॉलिक्यूल्स और दे कैन बी आयन्स एज वेल. दैट इज 1 मोल में इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं. समझ में आया? ये हम लोग कैलकुलेशन में लेते हैं. 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स. याद रखो. इधर मैंने दिया भी है, देखो. पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स, एनीथिंग. तो इधर मैंने एग्जांपल दिया है, देखो. हाइड्रोजन H2. एक हाइड्रोजन में, एक मोल में इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स रहते हैं. तो बट इसका मास क्या होता है? H2 दिया है ना, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, मतलब 2 ग्राम्स होगा. एक का 1 ग्राम तो 2 का 2 ग्राम. ऑक्सीजन का देखो, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन मतलब एक का 16 है, 2 का कितना होगा? 32 ग्राम्स. 32 ग्राम्स में 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स. इसको और इसको कंफ्यूज करके मत लो. ओके, दिस इज ग्राम, दिस इज मास एक्चुअली, एंड दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ये कुछ अलग थिंग है, ये कुछ अलग थिंग है. याद रखो. दिस इज हियर मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं करके. एक मोल में, एक 1 मोल मतलब 1 हाइड्रोजन, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग. 1 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें 1 कार्बन डाइऑक्साइड में 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 CO2 पार्टिकल्स प्रेजेंट है. ये इसको बोलते हैं हम लोग 1 मोल. ओके, जो सामने नंबर लिखते हैं उसको मोल्स बोलते हैं. और इसका जो हम लोग वेट निकालते हैं, ये मास होता है. देखो, ये मास होता है इधर जो निकाला है. समझ में आया? both are totally different quantity and do not get confused between the mole and the mass. याद रखो. सो दैट वॉज अ एग्जाम्पल. इधर सेम वे में मैंने वाटर का भी दिया है. देखो, वाटर H2O में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का बोला, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. मॉलिक्यूल्स मतलब H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. देखो ऐसे, ये एक H2O 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 ऐसे 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. बट उसका मास क्या है H2O का? 18 ग्राम्स है. 18 ग्राम्स ऑफ H2O में इतने H2O पार्टिकल्स प्रेजेंट है. 18 ग्राम्स, 18 ग्राम्स ऑफ पार्टिकल्स मतलब 18 क्या है? मास है. इतने मास में इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट है करके बोलते हैं हम लोग. इन 18 ग्राम्स ऑफ H2O इतने H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. ये मीनिंग है उसका. सो मैनी स्टूडेंट्स दे गेट कन्फ्यूज्ड बिटवीन द मोल एंड द मास ऑफ द मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर मास. याद रखो. फर्स्ट उसको क्लियर करो वो कॉन्सेप्ट को, देन ओनली यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. सी नेक्स्ट कमिंग टू द मोलार मास. See, molar mass, the mass of 1 mole of substance. एक मोल, अभी मोल पढ़ा ना हमने. एक मोल, एक मोल का जो सब्सटेंस है उसका जो मास है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोलार मास बोलते हैं. दैट इज़, इसका यूनिट क्या है? मास का ग्राम. ग्राम पर मोल, एक मोल में, दैट इज़ ग्राम पर मोल. इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, -1 करके, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ग्राम पर मोल करके. ओके, बोथ आर करेक्ट. तो मोलार मास ऑफ H2SO4, इट इज सेम लाइक हाउ यू कैलकुलेट यूर रिलेटिव एटॉमिक मास और फॉर्मूला यूनिट मास. सेम वैसे ही कैलकुलेट करते हैं. जैसे कि मैं
HCl का देती हूँ, इधर मैंने H2SO4 का दिया है ना। HCl में कितना है, 1H और 1Cl है। ओके, तो इसमें 1 हाइड्रोजन का 1 इंटू 1 होगा, 1 Cl का 1 इंटू 35.5 समथिंग होगा। तो इसका टोटली ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 36.5 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल बोलते हैं, समझ में आया HCl का। वैसे ही तुम लोग ना CO2 का भी कैलकुलेट कर सकते हो। 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। एक कार्बन का कितना है, 1 इंटू 12, दो ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, इधर 2 है तो 2 इंटू 16, दोनों को ऐड करो, 12 प्लस 32 कितना आएगा, 44 ग्राम पर मोल। क्या है ये, तुम्हारा मोलार मास है। 44 ग्राम्स फॉर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बोलते हैं हम लोग, समझ में आया। 44 ग्राम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलवेज इट इज रिटर्न इन ग्राम पर मोल, याद रखो, ऑलवेज रिटर्न इन ग्राम पर मोल, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, so it helps in converting moles into mass and vice versa, याद रखो। नेक्स्ट, मोलार वॉल्यूम। मोलार वॉल्यूम क्या होता है, देखो, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 केल्विन होता है। और प्रेशर हमारा मेंटेन रहता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस इज कॉल्ड एज मोलार वॉल्यूम। Volume occupied by 1 mole of any gas at standard temperature and pressure is called as molar volume. और 1 mole of एक gas, any gas, it occupies how much volume, 22.4 liter. that is volume कितना है at standard temperature and pressure, याद रखो। हाँ, standard temperature and pressure, टेम्परेचर कितना और प्रेशर कितना मेंटेन करना है, ऑलरेडी बोला मैंने। तो एक वॉल्यूम, एक मोल ऑफ वॉल्यूम कितना रहता है, 22.4 लीटर पर वॉल्यूम, 22.4 लीटर पर मोल। ओके, लीटर पर मोल, इतना हमारा वॉल्यूम रहता है ये। दिस इज कॉल्ड एज मोलार वॉल्यूम, याद रखो, ये था मोलार वॉल्यूम। नेक्स्ट, मोल रिलेशनशिप्स याद करते हैं। देखो, ये तुम्हारा, इफ सपोज तुम्हें मोल पता है तो मोल से तुम लोग मास फाइंड आउट कर सकते हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकते हो, और वॉल्यूम ऑफ एनी गैस भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये वॉल्यूम किसके लिए, सिर्फ गैस के लिए रहता है। ओके, सो मास रिलेशनशिप क्या होता है, देखो, इट इज़ मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू मोलार मास बोलते हैं। और जो गिवन मास है G करके लेते हैं हम लोग, N इंटू मोलार मास होता है, दैट इज 1 मोल। ये N होता है तुम्हारा, ये मोल होता है N। ओके, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट पेज में आएगा, मैं दिखाती हूँ क्लियरली कैसे कैलकुलेट करना है करके। इधर मैंने कुछ क्विक रेफरेंस टेबल दिया है, फॉर्मूलास दिया है। देखो, मोलार मास कैसे कैलकुलेट करते, फॉर्मूला, मोलार वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। N मतलब नंबर ऑफ मोल्स होता है। ओके, और ये गैस, ये सिर्फ वॉल्यूम गैस के लिए होता है, याद रखो। सी हियर, mole is a bridge between the microscopic world and the macroscopic world. So let's see here now mole mass particles relationship. Okay, mole concept, it connects to the mass, connects to the number of particles and to the volume of gases. याद रखो, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कितना है, 22.4 लीटर से। तो इधर से एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ, ये कन्वर्शन फ्लो चार्ट है, याद रखो, ये कन्वर्शन फ्लो चार्ट है। ये मोल्स है N। ओके, ये मोल्स है N। तो इधर ये थोड़ा रॉन्ग है, हाँ, इधर मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। सी,
अगर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू n इंटू दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर्स. इतना करेंगे तो हमें वॉल्यूम पता चलेगा एक मॉलिक्यूल का. अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, n कैलकुलेट करना है व्हेन वॉल्यूम इज़ गिवन, ये दिया रहता है, वॉल्यूम दिया रहता है, तभी हमें n इज इक्वल टू v बाई 22.4 दैट इज़ वॉल्यूम बाय v मतलब वॉल्यूम बाय 22.4 करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चलेगा. ये हमारा मोल्स और वॉल्यूम को कनेक्ट करता है, रिलेट करता है. ओके, सिमिलर वे में हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे फाइंड आउट करना है. देखो, अगर तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो तुम्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ मोल्स n इंटू अवोगैड्रो नंबर Na. नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स n इंटू अवोगैड्रो नंबर. सिमिलर वे में अगर तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो दैट इज हियर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर करना है. इसका स्क्रीनशॉट निकालो या फिर लिख के लो. ओके, ये है ब्रिज between the calculation of mass, number of particles and volume of the gas. इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स का मैं एक वीडियो लेके आऊँगी. ओके, तो अभी हम लोग जितना है उतना ही पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं क्या है करके विथ 1 और 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. देखो, नेक्स्ट इधर मास कैलकुलेट करने का बताया मैंने. मोलार, अगर नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलार मास करेंगे तो हमें गिवन मास मिलेगा. अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास करना है. ये है. सो यू गॉट हाउ मोल्स इज रिलेटेड टू मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस. ऐसे समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को. 1 क्वेश्चन वी विल सॉल्व, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, याद रखो. सो एग्जाम्पल्स दिया है, देखो मैंने, सॉल्व करते हैं. 36 ग्राम्स ऑफ वाटर. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. सी, डोंट सी हियर, जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग. 36 ग्राम्स ऑफ वाटर दिया है तो क्या है, गिवन मास W बोलते हैं हम लोग. गिवन मास कितना है, 36 ग्राम्स. ओके, मोलार मास कितना है, वाटर है ना, H2O. कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन प्लस कितने ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन. 10 नहीं है, हाँ, ऑक्सीजन है वो, 1 ऑक्सीजन. तो 2 हाइड्रोजन मतलब 1 हाइड्रोजन का 1 यूनिट 1 ग्राम, और 1 ऑक्सीजन का कितना है, 16 ग्राम्स. 1 इंटू 16 टोटली कितना आएगा, 18 ग्राम्स आएगा हमारा मोलार मास. हमें क्या कैलकुलेट करना है, n, नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ऊपर जाके देखो, चाहिए तो बैक करके देखो, रिवाइंड इट एंड सी क्या आएगा, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलार मास. गिवन कितना है, 36 डिवाइडेड बाय 18 कितना आया, कट करो 18 टेबल में, हाउ मच इट इज़, 2 मोल्स. कितना आया, 2 मोल्स आया. समझ में आया. हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, जो कुछ भी देने दो, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द मोल्स. वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. एक बार नंबर ऑफ मोल्स पता चला, वी कैन find anything. We can find number of particles, we can find the mass, we can find the volume, anything. तो फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहना चाहिए, वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स. तो मैंने इधर मोल्स कैलकुलेट किया. गिवन मास, गिवन कितना था, क्वेश्चन में देते हैं गिवन मतलब, डिवाइडेड बाय मोलार मास. मोलार मास तुम लोग कैलकुलेट करते हो कितना है करके. ओके, फॉर्मूला डाल के. वाटर बोला, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. H2O में कितना मास है तुमने फाइंड आउट किया, 18 ग्राम्स करके. ये था तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स. अभी नेक्स्ट हमें इसका पार्टिकल्स फाइंड आउट करना है. तो पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स n
n मोल्स इंटू अवोगैड्रो नंबर Na, n कितना है 2 आया, 2 मोल्स इंटू एक मोल में कितना पार्टिकल है, अवोगैड्रो नंबर है, 2 मोल में कितना होगा 2 इंटू अवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, तो कितना आएगा आंसर 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। समझ में आया? अंडरस्टैंड करो, एक बार जाके प्लेबैक करके देखो कि मैंने क्या सिखाया करके, ओके, वापस रिवाइंड करके देखो कि कैसे मैंने फाइंड आउट किया करके। तो तुम्हारा फर्स्ट एम क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, दैट शुड बी योर फर्स्ट एम। एक बार नंबर ऑफ मोल्स मिला, तुम लोग कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो उधर से रिलेट करके, ओके। तो ये था तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। गैस बोला है तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा, गैस के लिए हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, ओके। 5 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है 5 मोल्स करके, n दिया है हमें, 5 मोल्स है। ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन का कितना है, मोलार मास कैलकुलेट करके रखते हैं। मोलार मास कितना है इसका, ऑक्सीजन का 2 इंटू 16, मॉलिक्यूल है ना, ओके, पॉली एटम नहीं है इसमें, सिंगल मॉलिक्यूल है। 2 इंटू 16 32 ग्राम्स हुआ। तो इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो 1 मोल में कितना वॉल्यूम रहता है, 22.4 रहता है। अभी कितना मोल है 5, n इंटू द वॉल्यूम दैट इज फॉर 1 मोल 22.4 लीटर्स। कितना n तुम्हें मिला, n दिया है ऑलरेडी, ओके, मिला नहीं है, दिया है क्वेश्चन में, 5 इंटू 22.4 लीटर्स। कैलकुलेट करो कितना आता है करके, इतना लीटर्स ऑफ वॉल्यूम रहेगा 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन में। अभी मास फाइंड आउट करना है तो तुम्हें इसका टोटल मास फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, मोल्स दिया है ना, W फाइंड आउट करना है इसका टोटल मास। तो कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स n इंटू ये मोलार मास कितना है 32 ग्राम्स, दैट इज 5 मोल्स इंटू 32 ग्राम्स, 160 ग्राम्स आएगा। ये तुम लोग ऐसे टोटल मास कैलकुलेट कर सकते हो, इधर टोटल वॉल्यूम n इंटू 22.4 लीटर्स, ऐसे। समझ में आया? दिस इज़ हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। गैस का दिया है तो इधर हम लोग उसका मास, टोटल मास एंड total mass of 5 moles of oxygen and total volume for 5 moles of oxygen at standard temperature and pressure calculate किया। नेक्स्ट एक देखते हैं 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स मतलब कुछ भी हो सकता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ओके। इधर कितना दिया है 3.01 इंटू 10⁻23 करके दिया है, ये गिवन है। फर्स्ट मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग व्हाट इज गिवन हियर, दिस इज गिवन, ओके। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, कितना गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगैड्रो नंबर Na। गिवन कितना है 3.01 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, 1 जा 2 जा कितना आएगा 0.5 मोल्स। कितना मोल्स आया 0.1/2 मतलब 0.5 मोल्स, इतना आया तुम्हें। अगर एक बार हमें 0.5 मोल्स मिल गया, ओके, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बोला है, इफ गैस है तो यू कैन फाइंड आउट वॉल्यूम। मैं तुम लोगों को मास कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किया n, हम वही कर रहे बार बार रिपीटेडली। आई विल से यू सी व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट्स, फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। वंस यू गेट द नंबर ऑफ मोल्स यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग, ओके, फ्रॉम दैट। सी मास क्या होगा इसका, अभी टोटल मास n इंटू मोलार मास,
n इंटू मोलार मास, ये होगा उसका टोटल मास। n कितना है 0.5 इंटू मोलार मास। मोलार मास चाहिए तो सेपरेटली कैलकुलेट करो, एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, ओके। तो 1 कार्बन का 12 प्लस 2 इंटू 16 कितना आएगा 44 आएगा, 44 ग्राम्स। तो इसका 0.5 इंटू 44 ग्राम्स दैट इज़ 22 ग्राम्स, इतना आएगा। समझ में आया? ये 3 एग्जाम्पल से तुम्हें कुछ समझ में आया कि क्या किया? हमारा फर्स्ट एम है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का। एक बार हमें कुछ तो एक दिया रहता है, ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखो ये क्वेश्चन में पार्टिकल्स दिए थे कितना है करके, इधर देखो, एक मिनट, ये क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए थे थर्ड में। फिफ्थ में क्या दिया था? मोल्स दिया था, नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली दिया था, ओके। तो मोल्स दिया है डायरेक्टली, यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग। अगर नहीं दिया है, फर्स्ट ट्राई टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, देन यू कैन जंप टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इफ यू वांट मास, टोटल मास, यू कैन कैलकुलेट दैट। इफ यू वांट द टोटल वॉल्यूम, you can calculate that also. Got? So this is how you have to calculate based on this concept. This is the your conversion flow chart. ये याद रखो फर्स्ट। अगर ये याद रहा, इसमें ये रॉन्ग है, ओके, ये इनटू है, ये मल्टीप्लाई करना है, इधर नोट्स में रॉन्ग है थोड़ा, जस्ट करेक्ट इट। दिस इज मल्टीप्लिकेशन, दिस इज मल्टीप्लिकेशन, ओके। ये मल्टीप्लाई करना है, इधर डिवाइड करके दिया है मैंने, इंटू 22.4 लीटर्स है ये इधर डिवाइड आता है। समझ में आया? ओके, इट इज़ वेरी इजी एक्चुअली। यू ट्राई टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम योर एक्सरसाइज, देन यू विल गेट टू नो हाउ यू हैव टू डू इट, ओके। नेक्स्ट आते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन में। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, इट गिव्स द परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। देखो परसेंटेज एक फॉर्मूला से समझते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट क्या बोलते हैं हम लोग? मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। जो मास है एक एलिमेंट का इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, सिर्फ कार्बन एक एलिमेंट का कितना 1 मोल ऑफ कंपाउंड में कितना मास है, डिवाइडेड बाय मोलार मास, टोटल मोलार मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोला मैंने? देखो कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड इनटू 100, ओके। मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मोलार मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू 100, इसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का, वो अगर मॉलिक्यूल है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक कंप्लीट मॉलिक्यूल या कंपाउंड है, तो कार्बन उसका एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन उसका एक एलिमेंट है। एक एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय molar mass of the entire compound into 100 is called as percentage composition. एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं हम लोग, ओके। तो ऊपर का वाटर का तुम लोग कर सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट का इसका मैं बताती हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट में क्या क्या है? देखो कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। गॉट? कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है, 40 यूनिट्स। कार्बन का एटॉमिक मास 12 यूनिट्स, ऑक्सीजन का 16 यूनिट्स है। समझ में आया? तो इधर ऑक्सीजन अभी कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है। कैल्शियम एक ही है, कार्बन एक ही है, तो 3 ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 इंटू 3 48 होगा। समझ में आया? तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन देखेंगे 40 डिवाइडेड बाय टोटल कितना मास है, फर्स्ट इधर कैलकुलेट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होगा? 40 इंटू नहीं करते, सॉरी, 40 कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 3 इंटू 16 ऐड करना है, सारे एटम्स के बीच में एडिशन करना है, सम करना है। कितना आएगा? 48, इधर 52 होगा टोटल, ये 100 ग्राम्स आएगा। समझ में आया? कैल्शियम कार्बोनेट का मोलार मास ऑफ दैट कंपाउंड। तो इधर कैल्शियम का कितना आएगा? 40 परसेंटेज कॉम्पोजिशन 40 बाय 100 इंटू 100। इधर कार्बन का कितना आएगा? 12 बाय 100 इंटू
100, इसका कितना आएगा 48/100 इंटू 100, ये नीचे 100 ये वाला है कैल्शियम कार्बोनेट का मोलार मास इंटू 100 मतलब परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए कट होता है, कितना आता है ये 40%, ये 12% और ये 48%. This is how you have to calculate the percentage composition for each element in a compound. Okay, that is mass of that element which is present in the compound. अगर ऑक्सीजन 3 है तो तीनों का लेंगे तुम लोग, समझ में आया, सिर्फ एक ऑक्सीजन का मत लो, तीनों ऑक्सीजन का लेना चाहिए, डिवाइडेड बाय कंप्लीट टोटल मोलार मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100 क्यों परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे. सिमिलर वे में ये भी सॉल्व करो तुम लोग, वाटर का समझ में आएगा तुम्हें क्या है करके. और जब तुम लोग ऐड करते हो 40% प्लस 12% प्लस 48%, तुम्हें फाइनली उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो ना, आउट ऑफ 100 टोटल ऐड करने के बाद तुम्हें क्या मिलना चाहिए 100% मिलना चाहिए. तुम लोग ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो चाहिए तो तुम्हारा आंसर गलत है क्या करेक्ट है करके फाइंड आउट करने के लिए. ओके, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम for each and every compound, each and every element in a compound. Okay, so this is used in industries to check purity and composition of raw materials which are used, and it helps to identify a compound by comparing its percentage composition with known data, and helps in analyzing minerals, ores, drugs, food and polymers in the industries for analysis. Okay, use करते हैं हम लोग. एंड ऑल्सो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द एम्पिरिकल फार्मूला, जो अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ना, वो एम्पिरिकल फार्मूला वो भी हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन से ही पता चलता है. वो कैसे कैलकुलेट किया, सिमिलर वे में ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं. देखो द एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, इट इज़ द simplest whole number ratio of different elements present in a compound. क्या होता है, it is the simplest whole number ratio of different elements which are present in a compound. अगर तुम्हारा C6H12O6 ये ग्लूकोज का है, ओके, अगर एक ग्लूकोज है तो इधर कार्बन कितना है 6 है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन कितना है 12 है, ऑक्सीजन कितना है 6. इसको होल नंबर में कन्वर्ट करो, 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा कितना आएगा 1 2 1 आएगा. तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ये होगा तुम्हारा एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज. समझ में आया, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. अगर ऐसे 6 12 6 है तो उसको कट करने का पॉसिबल है, डिवीजन पॉसिबल है तो डिवाइड करो, सिंपल होल नंबर रेशियो में रहना चाहिए. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड. इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड. समझ में आया. और वो जो C6H12O6 वो क्या था, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला था, वो उसका कंप्लीट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज था. एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, देखो हियर, हाँ इधर एक क्वेश्चन करते हैं, नीचे भी एक क्वेश्चन दिया है मैंने, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट लेटर. इफ अ कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन, कितना कार्बन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऐसे कैलकुलेट करना है. कितना दिया है, कार्बन 40% दिया है, नेक्स्ट 6.7% हाइड्रोजन दिया है एंड 53.3% ऑक्सीजन दिया है. ओके, इतना दिया है. तो इसका मोलार मास हम लोग लिख के लेते हैं फर्स्ट, कितना है मोलार मास, ये उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन है. ये क्या है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन. तो इसका गिवन मास कितना होगा, गिवन मास सेम होगा, आउट ऑफ 100. लेट अस टेक 100 ग्राम है करके सपोज मान के चलते हैं, आउट ऑफ 100. ओके, परसेंटेज मतलब इट इज़ आउट ऑफ 100. तो गिवन मास इन 100 ग्राम्स कितना है करके लेके चलते हैं. इसका 40 ग्राम्स होगा, इसका 6.7 ग्राम्स होगा और इसका 53.3 ग्राम्स होगा. समझ में आया. तो इसका मोलार मास मतलब
यू हैव टू नो इट। मोलार मास क्या होगा, कार्बन का 12 ग्राम्स है। नेक्स्ट हाइड्रोजन का कितना है, 1 ग्राम है। ऑक्सीजन का कितना है, 16 ग्राम्स है। समझ में आया, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16 ग्राम्स, इतना है। तो इसका मोल्स फर्स्ट कैलकुलेट करके लेते। मोल्स क्या होता है, यू नो, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। 40/12 कितना आएगा, 40/12 आएगा। इसका कितना आएगा, 6.7/1 आएगा। इसका कितना आएगा, 53.3/16 आएगा। यू हैव टू नो द सिंपल होल नंबर। ओके, आई विल जस्ट टेल यू, 40/12 तुम्हारा आएगा 3.33 आएगा, एंड 6.7/1 मतलब 6.7 ही आएगा, और 53.33/16 मतलब 3.33 आएगा। समझ में आया। नेक्स्ट इधर अभी सिंपल होल नंबर से डिवाइड करो। सिंपल होल नंबर तुम्हारा कौन सा है, 3.33। समझ में आया, इससे डिवाइड करो। सिंपल होल नंबर इधर जो मिलता है तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स में, इधर कितना आएगा, 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 दैट इज इक्वल टू 1। 6.7 डिवाइडेड बाय 3.33 2 आएगा, इसका भी 1 आएगा। तो कार्बन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। दैट इज योर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH2O। ये तुम्हारा एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला फ्रॉम द परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो परसेंट में दिया है ना, कन्वर्ट इट इनटू ग्राम्स, मतलब आउट ऑफ 100 ग्राम्स करके ले लो तुम लोग, कुछ भी रहने दो, आउट ऑफ 100 लो। तो जितना परसेंट में दिया वो ग्राम्स में लिखते जाओ, उसी को हम लोग गिवन मास बोलते हैं। W है, आउट ऑफ 100। ओके, मोलार मास मतलब तुम्हें पता रहता है कितना है करके। कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। ओके, नेक्स्ट तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय द मोलार मास। तो जो तुम्हें वैल्यू सबसे कम आएगा, लोएस्ट वैल्यू आएगा, उससे तुम्हें सभी वैल्यूज को डिवाइड करना है। तो तुम्हें क्या मिलता है, एक नंबर मिलता है। ओके, होल नंबर मिलता है, दैट इज यू हैव टू राइट इन द रेशियो फॉर्म। कार्बन कितना है, 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो तुम्हारा वो रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या देगा तुम्हें, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड देगा। समझ में आया। दिस आर द स्टेप्स, इन दैट सेम स्टेप्स आई हैव डन इट। ओके, आई हैव सॉल्व्ड इट, यू कैन जस्ट सी। हाँ, सेम क्वेश्चन इट इज सॉल्व्ड हियर। ओके, ये सेम क्वेश्चन दिया है इधर, देखो, बट इधर गलत क्या किया है पता है, एक इधर ये 1.67 लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये यू कैन टेक हियर इट एज 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33। इधर डायरेक्टली तुम्हें 121 मिलेगा। ओके, ये मिलेगा ही नहीं, 242 मिलेगा ही नहीं, क्या मिलेगा, 121 मिलेगा डायरेक्टली। 3.3 के साथ ही डिवाइड करो। समझ में आया, ये थोड़ा अलग दिया है वो लोगों ने, मैंने जो बताया वो बहुत इजी वे था। इधर जो सिंपल रेशियो मिलता है, सिंपल होल नंबर मिलता है ना, उससे डिवाइड करो। इधर नंबर ऑफ मोल से जो सिंपल होल नंबर मिलता है 3.33 है, तो उसी से इसको सभी नंबर्स को डिवाइड करो। 3.33 से ही डिवाइड करो, 121 मिलेगा, 1:2:1 मिलेगा। ओके, वो लोगों ने 1.67 से डिवाइड किया है, उसका सिंपल और होल नंबर रेशियो लिया है 1.67 करके, 3.33 और 6.7 का। यू कैन जस्ट डिवाइड डायरेक्टली, तो तुम्हें ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मिलेगा। We will solve more number of questions from your textbook, in text questions and exercise questions. That time you will get to know. Okay, but इसको ये कॉन्सेप्ट याद रखो कि कैसे सॉल्व किया है करके। समझ में आया, एक ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है इधर, कॉन्सेप्ट याद रखो कैसे सॉल्व करना है। एंड यू ट्राई विथ अनदर क्वेश्चन फ्रॉम योर NCERT टेक्स्ट बुक। ओके, फ्रॉम एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चंस है, 4-5 क्वेश्चंस है, यू कैन जस्ट ट्राई इट। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू जस्ट से इन द कमेंट सेक्शन। ओके,
नेक्स्ट कमिंग टू मॉलिकुलर फार्मूला. मॉलिकुलर फार्मूला इधर ग्लूकोज का मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को एक्सप्लेन किया. उसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O रहता है, बट इसको हम लोग मॉलिकुलर फार्मूला C6H12O6 लिखते हैं. इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड दैट शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स. ये क्या था? एम्पिरिकल सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो था, बट ये क्या है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स विच आर present in one molecule of that compound. Actual number of atoms of the elements present in the whole compound, okay, present in one molecule of that compound is called as molecular formula. और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? molecular formula is equal to number of moles n into empirical formula, okay, n into एम्पिरिकल फार्मूला याद रखो. तो इधर देखो, कैसे कैलकुलेट किया है. सेम क्वेश्चन लिया है. देखो, अ कंपाउंड हैज़ इतना दिया है, इट्स मोलार मास इज 180 ग्राम्स दिया है. ऑलरेडी मोलार मास दिया है तुम लोगों को, कंप्लीट मोलार मास, ओके. वो जिधर तक हमने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट किया सेम स्टेप्स रिपीट हो जाएगा. बाद में एक बार हमें एम्पिरिकल फार्मूला ऊपर क्या मिला था? CH2O मिला था. तो इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है? गिवन मास दिया है. इसका गिवन मास कितना है? 180 ग्राम्स पर मोल. ये 180 ग्राम्स गिवन है. और इसका मोलार मास क्या होगा? मोलार मास या एम्पिरिकल फार्मूला मास. एम्पिरिकल फार्मूला मास लिखते हैं हम लोग. एम्पिरिकल फार्मूला, मोलार मास नहीं बोलते, एम्पिरिकल फार्मूला मास बोलते. कितना होगा? कार्बन कितना है? एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन. 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, इसका 30 ग्राम्स पर मोल आएगा, ओके. तो इधर से हमें n मिलेगा. n इज इक्वल टू गिवन मास 180 डिवाइडेड बाय 30, दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला मास. कितना आएगा? 6 आएगा. n कितना मिला तुम्हें? 6. n इज 6, ओके. n 6 मिलने के बाद इधर जो मिला है तुम्हें CH2O इंटू 6 करो, कितना मिलेगा? C6H12 होगा. 2 इंटू 6 O6. ये होगा तुम्हारा ग्लूकोज मॉलिकुलर फार्मूला C6H12O6. एम्पिरिकल फार्मूला तक सेम स्टेप्स रिपीट करना है. ऊपर कैसे सॉल्व किया था सेम एम्पिरिकल फार्मूला का वो टेबल फॉर्म में, और उसके बाद नीचे आके ये कैलकुलेट करना, ये फाइंड आउट करना है. गिवन ऑलरेडी दिया है. एम्पिरिकल फार्मूला मास तुम्हें पता रहेगा कितना है करके. एक बार फार्मूला मिलने के बाद नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो. बार बार रिपीट कर रही हूँ. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय योर मॉलिकुलर मास या जो भी मोलार मास जो भी है, ओके. इधर हमारा एम्पिरिकल फार्मूला मास है, वो है. इसको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो और जस्ट मल्टीप्लाई इट इनटू एम्पिरिकल फार्मूला. तुम्हें आंसर मिलेगा मॉलिकुलर फार्मूला का. समझ में आया? सी, generally students they get confused between the empirical formula and molecular formula and incorrect calculation of empirical formula mass as well, okay. याद रखो. नेक्स्ट करेक्टली सॉल्व करो, ओके. नेक्स्ट इज कमिंग टू केमिकल इक्वेशन. सी, वो था हमारा मोल कॉन्सेप्ट. समझ में आया? मोल कॉन्सेप्ट में हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मास एंड योर वॉल्यूम सभी देखा हमने. अभी नेक्स्ट पार्ट है, थोड़ा एंड होने आया चैप्टर, केमिकल इक्वेशन. अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स. क्या होता है? रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन टेक प्लेस होता है और क्या फॉर्म मिलता है हमें? प्रोडक्ट्स मिलता है लास्ट में. इसमें क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मास होता है. दैट इज मास ऑफ एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जस्ट एटम्स अरेंज होते हैं उतना ही, ओके. मास जितना पहले रिएक्टेंट्स में रहता है उतना ही प्रोडक्ट के साइड में भी रहता है. एंड
here a chemical equation is given, an example is given, burning of methane CH4 in the presence of oxygen O2. Okay, what you will get, carbon dioxide plus water, and here ये bracket में जो भी लिखा है ना G, ये लिखा है ना, they are the physical states, that is S मतलब solid, L मतलब liquid, G मतलब gas, AQ मतलब aqueous solution बोलते हैं। और रिएक्शन के ऊपर अगर इधर ऐसे ट्राइंगल डाला है तो हीट होता है। ओके, पीटी लिखा है तो प्लैटिनम होता है, MnO2 मतलब मैंगनीज ऑक्साइड होता है, कैटलिस्ट होता है। ये सभी कैटलिस्ट हम लोग इधर एरो पे लिखते हैं। समझ में आया? ये है तुम्हारा एक एग्जाम्पल फॉर अ केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन बोल सकते हो। नेक्स्ट है बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है? देखो, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम ऑन द बोथ साइड्स, दैट इज ऑन द रिएक्टेंट एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट साइड। याद रखो, अगर ये तुम्हें H2 + O2 H2O दिया है, ये बैलेंस्ड नहीं है। क्यों बैलेंस्ड नहीं है? देखो, इधर कितने हाइड्रोजन थे? 2 हाइड्रोजन थे। इधर ऑक्सीजन कितने थे? 2 ऑक्सीजन है। बट इधर कितना है? 2 हाइड्रोजन 2 है। हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, बट ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो इधर ये बैलेंस्ड नहीं है ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन बैलेंस्ड करने के लिए हमें क्या इधर डालना है? 2 डालना है। कभी भी इधर नीचे मत डालो, हाँ, दिस इज़ अ रॉन्ग वे ऑफ बैलेंसिंग। जो भी नंबर तुम्हें लिखना है वो किधर लिखते हैं तुम लोग? सामने लिखना चाहिए। किधर? इधर सामने लिखना चाहिए। 2H2O लिखा मैंने। 2H2O मतलब अभी हमारा हाइड्रोजन चेंज हो गया। हाइड्रोजन कितना हुआ? 2 × 2 4 हुआ। मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। इधर ये 4 हुआ तो इसको भी बैलेंस करने के लिए इस तरफ 2 डालो। 2H2, देखो 2H2 + O2 gives 2H2O. दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इज हाउ यू हैव टू बैलेंस इट। लास्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में तुमने बैलेंसिंग करने का देखा है। हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, यू हैव सीन इट। Okay, next coming to the stoichiometric basics. Stoichiometry is the quantitative relationship between reactants and products in a balanced equation. याद रखो। तो अगर द कोइफिशिएंट इन अ बैलेंस्ड इक्वेशन इट गिव्स द मोल रेशियो, ये जो हम लोग सामने नंबर डालते हैं ना, 2H2 + O2 gives 2H2O था, तो इधर जो सामने हमने नंबर डाला ये 2, इधर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 0 नहीं होता है। ओके, कुछ भी नहीं है मतलब क्या है? 1 है। और इधर भी 2, ये क्या होते हैं? तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। एक बार ये मोल रेशियो तुम्हें मिल गया केमिकल इक्वेशन में, मोल रेशियो सपोज मिल गया, फ्रॉम दिस मोल रेशियो यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। एक बार मोल्स पता चला तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो, मास कैलकुलेट कर सकते हो, वॉल्यूम फॉर गैसेस कैलकुलेट कर सकते हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। मेन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में तभी कैलकुलेशन करते वक्त भी बोला था तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल्स पता लगाना है। और इधर बैलेंस करने से ही तुम्हें पता लगेगा कि मोल्स कितने हैं करके। समझ में आया? बैलेंस से ऑटोमेटिकली तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। और एक बार मोल्स मिल गए यू कैन कैलकुलेट एनीथिंग। समझ में आया ना? दैट इज अ केमिकल equation, a balanced chemical equation. And now we are seeing the stoichiometric concept. Okay, in that limiting reagent and excess reagent क्या होता है? देखो, ये भी limiting reagent and excess reagent तुम्हें एक equation balanced होने से ही तुम्हें पता रहता है। limiting reagent मतलब it is what you see the reactant। ओके, जो रिएक्टेंट है हम लोग स्टार्टिंग में जो लेते हैं ना उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। वो रिएक्ट होके क्या फॉर्म होते हैं? तुम्हारे प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। द रिएक्टेंट विच गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड, जो रिएक्टेंट फुल ख़त्म हो जाता है एक रिएक्शन में, कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिट है उसका, देखो लिमिटिंग, ख़त्म हो गया वो और बचा ही नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। इट डिटरमाइंस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। अभी वो कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है मतलब प्रोडक्ट साइड में दिखेगा वो, मतलब क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट उसी से बना है। समझ में आया? दैट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। इट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। याद रखो। तो एग्जाम्पल मैंने इधर दिया है, देखो N2 और H2, ओके, अमोनिया का रिएक्शन दिया है NH3।
तो इधर फर्स्ट बैलेंस करो। कॉन्सेप्ट क्या है, लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का तुम्हें बैलेंस करने आना चाहिए। विदाउट बैलेंस तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। ओके, तो इधर n कितना है 2 है, इधर n कितना है 2 है, इधर n कितना है 1 है, इधर हाइड्रोजन 3। तो इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट विल ट्राई टू बैलेंस नाइट्रोजन। इस तरफ 2 डालो, इस तरफ 2 डालोगे तो इधर नाइट्रोजन अभी 2 हो गया और हाइड्रोजन कितना हुआ 2 × 3 6 हो गया, 6 हो गया ना। सो ये 6 होने से इस तरफ भी तुम्हें 6 चाहिए। इस तरफ 6 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 2 6 मिलेगा तुम्हें, 3 इस तरफ डालो तो ये होगा तुम्हारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आया। तो अभी देखो इसमें रिएक्टेंट साइड में देखो तुम लोग 3 मोल्स ऑफ तुम्हें मोल्स मिले, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 मोल्स है। ओके, मोल रेशियो मिला तुम्हें। इधर रिएक्टेंट में ही हमारा काम है, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट has nothing to do with the product side. Both the answers are in your reactant side only. Okay, so तुम्हें आइडेंटिफाई करना भी है। बाई चांस एक क्वेश्चन आया भी केस स्टडी के फॉर्म में या MCQ के फॉर्म में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया तो तुम्हें किस तरफ देखना है, यू हैव टू फोकस ऑन द रिएक्टेंट साइड। लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा या एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, रिएक्टेंट साइड का रिएक्टेंट होता है। ओके, तो इसमें देखो 1 नाइट्रोजन 1 N2 के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो ये ख़त्म हो जाएगा, फर्स्ट जो 1 है सबसे कम है, मतलब ये होगा तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। समझ में आया, ख़त्म होगा, वो जल्दी ख़त्म होगा। और जो बचा है ये अभी ऑलरेडी इसमें एक के लिए एक ख़त्म हो गया, एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन के लिए एक हाइड्रोजन ख़त्म हुआ और कितने बचे हैं, 2 हाइड्रोजन बचे। तो ये क्या है, एक्सेस में बचा है, तो दैट विल बी योर एक्सेस रिएजेंट। समझ में आया, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, एक्सेस रिएजेंट क्या है, अभी समझ में आया तुम लोगों को। H2 is the excess reagent and N2 is the limiting reagent. Why? Because N2 is completely used up first. Okay, and what is left, only hydrogen is left. It is left unreacted, it remains unreacted, इसीलिए वो excess condition में, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, excess reagent बोलते हैं। Okay, this is the concept behind limiting reagent and excess reagent. Excess reagent क्या होता है, the reactant which is left consumed after the reaction, it is called as excess reagent. Okay, सो ये है तुम्हारा कॉन्सेप्ट। देखो एक ही इक्वेशन में मैंने लिमिटिंग भी सिखाया, एक्सेस रिएजेंट भी सिखाया, तो तुम लोग ये फ्लो से फाइंड आउट कर सकते हो। एक रिएक्शन दिया रहता है, बैलेंस करो उसको, फर्स्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लेना चाहिए। अगर इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है देन यू कांट फाइंड आउट विच इज़ लिमिटिंग एंड विच इज़ एक्सेस। सो योर फर्स्ट एम शुड बी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ये तुम्हारा फर्स्ट एम रहना चाहिए। देन कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, जैसे मैंने कैलकुलेट किया ना बैलेंस करके रेशियो में 1:2 उधर ऐसे 3 ऐसे आ रहा था, तो इसको बोलते हैं हम लोग मोल रेशियो इन द रिएक्शन। उसके बाद जो भी हमारा ना कम रहता है वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। जो लेस है, लेस वाला क्या होता है, लिमिटिंग रहता है। ओके, ये लिखा है इधर फुल, चाहिए तो पढ़ो। और जो इधर ज़्यादा रहता है, मोर रहता है, ग्रेटर देन, ओके आई हैव रिटन हियर, सी मोर रहता है, ज़्यादा रहता है, वो क्या होगा तुम्हारा, एक्सेस रिएजेंट होगा। समझ में आया, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। इफ़ यू वांट यू जस्ट गो थ्रू दैट। ओके, इधर एग्जाम्पल के साथ तुम्हें स्टेप्स वाइज सिखाया भी है, सेम मैंने जो बताया वही सेम इधर सिखाया है, देखो क्या है करके। और प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल ऑल्सो डिपेंड ऑन H2, मतलब जो लिमिटिंग है उसके ऊपर ही, सॉरी जो एक्सेस है उसके ऊपर ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। समझ में आया। और लेफ्ट ओवर भी तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो उससे, जस्ट गो थ्रू दैट एग्जाम्पल, you will get to know. Limiting reagent, it limits the reaction and excess reagent is left behind. Next आते हैं concentration terms के ऊपर। ओके, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज,
parts per million, ppm, all these things. So concentration terms, they tell us how much solute is present in a given amount of solution. एक solution में कितना solute present है. solute मतलब पता चला ना, solute, solvent, okay, all these things you have to know first. Solution मतलब solute plus solvent is your solute plus solvent is your solution. solute मतलब सॉलिड फॉर्म हो सकता है, सॉल्वेंट मतलब इट इज़ लिक्विड फॉर्म में रहता है, ओके, प्रेजेंट. तो मास परसेंटेज देखते हैं, W बाय डब्ल्यू, वेट बाय वेट बोलते हैं हम लोग. मास परसेंटेज इज नथिंग बट mass of the solute divided by mass of the solution into 100. एग्जाम्पल के साथ देखो, ऑलरेडी तुमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है मुझे लगता है, तो सेम थिंग रिपीटिंग है, कुछ ज़्यादा ये नहीं है, ये उतना समथिंग न्यू कुछ नहीं है, ओके, ओल्ड कॉन्सेप्ट ओनली. 10 grams ऑफ NaCl. NaCl जो है तुम्हारा वो क्या है, सोल्यूट है. NaCl सोल्यूट है. इसका गिवन मास, मास ऑफ द सोल्यूट कितना दिया है, मास इधर दिया है 10 grams करके दिया है. इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन. तो सोल्यूशन का ऑलरेडी मास बोला है तुम लोगों को कितना है, 100 grams ऑफ सोल्यूशन करके. तो इसका मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो वेट बाय वेट परसेंटेज, मास परसेंटेज बोलते हैं इसको, कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ द सोल्यूट जो 10 grams है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय 100 grams इंटू 100, ओके, परसेंटेज है ना इसीलिए इंटू 100 करते. कितना आएगा तुम्हें, 10%. ये है कैलकुलेशन, समझ में आया. ये है तुम्हारा फॉर्मूला, मास परसेंटेज दैट इज W बाय डब्ल्यू परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, ओके. नेक्स्ट आते हैं वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम परसेंटेज देखो, इसमें हम लोग किस में लेते हैं, वॉल्यूम है ये, लीटर्स या ml में कंसीडर करते हैं. ऊपर क्या था, मास था, ग्राम्स में कैलकुलेट कर रहे थे. तो हियर इट एक्सप्रेसेस द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ओके, आउट ऑफ 100 ml, ऐसे ml में बोलते हैं. तो इधर एक क्वेश्चन दिया है देखो, 25 ml ऑफ एथेनॉल, दैट इज फॉर्मूला फर्स्ट देखते हैं. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय सोल्यूट या सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 होता है. समझ में आया, नहीं तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट होता है. तो ये एक ही फॉर्मूला याद रखो तुम लोग, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. गॉट. नेक्स्ट इधर एक क्वेश्चन दिया है देखो, 25 ml ऑफ एथेनॉल. तो 25 हमारा ऊपर आएगा, आउट ऑफ इज मिक्सड विथ वाटर. वाटर हमेशा जब भी वाटर देते हैं तो हम लोग उसी को हम लोग सॉल्वेंट करके लेके चलते हैं. समझ में आया, वाटर को ही सॉल्वेंट करके लेके चलते हैं. ज़्यादा क्वांटिटी में वही प्रेजेंट रहता है. अगर आइडेंटिफाई करने नहीं हो रहा है तो दोनों लिक्विड है तो इधर water to make a 250 ml solution, 250 ml solution into 100, ऐसे. ये तुम्हें जितना परसेंटेज मिलेगा that will be your volume by volume percentage. याद रखो, it is used when both solute and solution are in same state, that is usually liquid state में, ओके. तो हम लोग उसको solvent मान के भी चलते हैं. नेक्स्ट आता है parts per million. ये नया है, पार्ट्स पर मिलियन. देखो इसको समझते हैं. इट एक्सप्रेसेस द मास ऑफ सोल्यूट विच इज प्रेजेंट इन 10 to power 6 पार्ट्स, दैट इज मिलियन पार्ट्स, ओके. 10 to power 6 मतलब मिलियन पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन, इसीलिए पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं हम लोग. इट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन. पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला देखो, मास ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सोल्यूशन इनटू 10 to power 6. ऊपर तुम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे थे ना, नीचे तुम्हें ppm कैलकुलेट करना है तो 10 to power 6 लेके चलते हैं हम लोग, पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ओके. ये है इतना पार्ट्स पर मिलियन, ऐसे मान के चलते हैं. समझ में आया. एक क्वेश्चन करते हैं देखो, 2 मिलीग्राम ऑफ पोल्यूटेंट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर. अभी 1 लीटर लिया है तो इसको 1 kg के हिसाब से लेके चलना है तुम्हें. इधर क्योंकि mg दिया है ना, सो इधर क्या दिया है, 2
mg मिलीग्राम्स में दिया है, तो इधर वाटर लीटर्स में दिया है. 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg होता है, तो ये कितना होगा 1000 ग्राम्स होगा. बट ये सिंस mg में है, तुम्हें भी mg में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा. इसका कितना आएगा 10⁶ mg आएगा. 1000 ग्राम्स मतलब 1 मिलियन मिलीग्राम्स इतना आएगा. तो 2 mg डिवाइडेड बाय कितना mg तुम्हारा सोल्यूशन, ये हाँ सोल्यूशन कितना है, वाटर कितना है वो लिखो इंटू 10⁶. दैट इज़ ये कट हो जाएगा और फाइनली 2 ppm इतना बचेगा. समझ में आया? दिस इज पार्ट्स पर मिलियन. ओके, 1 लीटर को इधर जितना है हमने एक्सप्रेस किया इन द फॉर्म ऑफ kg. 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg. 1 kg इज 1000 ग्राम्स. ग्राम्स से mg में कैलकुलेट करो. ओके, तो तुम्हें फाइनली आंसर मिलेगा. नेक्स्ट क्या है देखो, इधर क्विक समरी मैंने दिया है, फॉर्मूला दिया है एज अ होल. एंड दिस पार्ट्स पर मिलियन इट इज़ यूज्ड इन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. ओके, इन मेनली इन वाटर एनालिसिस एंड पोल्यूशन कंट्रोल. याद रखो पार्ट्स पर मिलियन. ओके, एंड नॉर्मली वी टेक इट इन मिलीग्राम्स और लीटर्स. लीटर्स में दिया है दोनों, तो दोनों लीटर्स में ले लो. अगर 1 मिलीग्राम्स और 1 लीटर्स में दिया है तो कन्वर्ट दैट लीटर पार्ट इनटू मिलीग्राम्स. ओके, इसीलिए वो 1 लीटर्स में दिया था वाटर, तो मैंने उसको कन्वर्ट किया 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg लेके. नेक्स्ट आते हैं देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आएगा इधर से CBSE बोर्ड एग्जाम्स में. ओके, 1 या 2 क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा इधर से. एंड नेक्स्ट ईयर सोल्यूशंस चैप्टर है क्लास 12th में, उधर भी हेल्प होगा. फर्स्ट आते हैं देखो मोलैरिटी. मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी उतना नहीं है तुम लोगों को इस बार, नेक्स्ट ईयर आएगा ज़्यादातर. मोलैरिटी क्या होता है देखो, वी एक्सप्रेस इट एज कैपिटल M एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन मोलार मास. ओके, मोलार मास ऐसे लिख सकते हो तुम लोग, या फिर तुम लोग मोलार मास करके ही लिखो उसको. M बहुत सारे M में कंफ्यूज मत हो जाओ. ये हमारा क्या होता है, कैपिटल M होता है मोलैरिटी. ओके, मोलार मास को तुम लोग M करके लिख सकते हो ऐसे, और नीचे ये मोलैलिटी स्मॉल m में ही देते हैं. तो इसीलिए बेटर होगा कि मोलार मास को ऐसे मोलार मास करके ही लिखो, तो ये बेस्ट होगा तुम्हारे लिए. कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा. इवन टीचर्स को पेपर करेक्शन करते वक्त भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि तुमने क्या लिखा है. Okay, without wasting, let's see what is molarity now. Molarity is defined as the number of moles of solute which is present in 1 liter of solution. Moles of solute present in 1 liter volume of the solution. समझ में आया? What is molarity? Moles of solute present in 1 liter volume of solution is called as molarity. बाई चांस ये फॉर्मूला तुम्हारा लीटर्स के फॉर्म में है. समझ में आया? अगर ml, ज़्यादातर ml में देते हैं, तो क्या करना है, अगर इधर ml है, इन ml दिया है, तो इसको इंटू 1000 करो. सिंपल, इंटू क्या करना है 1000 करना है. समझ में आया? या फिर ml को पहले ही कन्वर्ट करके लो, विच इज़ बेस्ट यू सी, विच इज़ कन्वीनियंट फॉर यू पीपल. ओके, तो मेरा मानना है कि यू ट्राई लाइक दिस, ml में लिखो इंटू 1000 करो ऊपर, बेस्ट होगा. नहीं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लीटर्स में बाई चांस दिया है अभी, तो क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को 0.00 ऐसे करके लीटर्स में कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा. तो सॉल्व करने के लिए डिफ़िकल्ट होता है. ओके, तो एक क्वेश्चन के साथ हम लोग देखते हैं. देखो 2.46 ग्राम्स ऑफ H2SO4 मोलार मास दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में. वेल एंड गुड अगर दिया है तो, नहीं तो तुम्हें सॉल्व करने के लिए भी पता रहना चाहिए. मोलार मास हमने ऑलरेडी बहुत सारा अभी किया है, कि कैसे सॉल्व करना है तुम्हें पता है. तो 2.46 गिवन मास हम लोग W बोलते हैं. 2.46 गिवन है एंड मोलार मास तुम लोग मोलार मास करके ही लिखो. नो, देयर विल बी नो कन्फ्यूजन. इक्वल टू कितना दिया है, 98 ग्राम्स दिया है. तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का बड़ा बात नहीं है. W गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास होगा. दैट इज 2.46 डिवाइडेड बाय 98. इट विल कम अप्रॉक्सीमेटली 0.025.
ओके 0.025 मोल्स मिलेगा तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स. इज डिजॉल्व इन वाटर टू मेक 500 ml ऑफ सोल्यूशन. कितना दिया है 500 ml ऑफ सोल्यूशन. ये होगा तुम्हारा क्या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. देखो किस में दिया है 500 ml. चाहिए तो इधर ही तुम लोग उसको कन्वर्ट करके ले सकते हो. ये होगा तुम्हारा 0.5 लीटर्स या फिर तुम लोग इंटू 100 भी कर सकते हो. दोनों कर सकते हो. ओके ये कितना आएगा 0.5 लीटर्स मतलब डिवाइडेड बाय 100 करो इसको. सॉरी डिवाइडेड बाय 1000 करो. कितना आएगा 5/10 1/2 दैट इज 0.5 लीटर्स. एंड मोलैरिटी कैलकुलेट करो. मोलैरिटी क्या होगा that is number of moles of solute 0.025 divided by volume of the solution. कितना है 0.5 liters in liters. ओके दैट इज मोल पर लीटर. ये होगा तुम्हारा यूनिट. इसका यूनिट क्या है मोल्स पर लीटर. ओके कितना नंबर ऑफ सल्यूट कितने मोल्स ऑफ सल्यूट इन डिजॉल्व्ड इन in volume of solution in liters. Okay the number of moles of solute dissolved in volume of solution in liters. ये है तुम्हारा molarity. समझ में आया. more questions we will do try to solve in another video. Okay because this video will take lengthy. It will be lengthy actually, so I have not included too much of questions. one examples I have shown you. Next is coming to molality. molality क्या होता है देखो small m that is हम लोग इसको मास के हिसाब से लेते हैं. उधर वॉल्यूम के हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम लिया था, इधर विथ रिस्पेक्ट टू मास लेते. इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. उधर 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन था. 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन लीटर वॉल्यूम्स के केस में था. इसमें 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. सेम वे में कैलकुलेट करना है. एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर. मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. याद रखो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. ये याद रखो kg में. अगर ग्राम्स में दिया है तो सेम फॉर्मूला लगाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा. याद रखो kg इन kg. वो ऊपर वाला इन लीटर्स था. ओके क्योंकि ml और ग्राम्स में देते हैं. क्वेश्चन माइन्यूट क्वांटिटीज में देते हैं. तुम्हें एकदम बड़े से क्वांटिटीज में नहीं देते. कन्वर्ट करके लेना है. इधर क्वेश्चन देखो 5.85 ग्राम्स ऑफ NaCl मोलार मास. हाँ ऑलरेडी दिया है. तो W गिवन मास NaCl का कितना है 5.85 है. इधर मैं सॉल्व कर रही हूँ. एंड मोलार मास इधर मोलार मास करके लिखो. कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए. कितना दिया है 58.5 दिया है. तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का बड़ी बात नहीं है अभी तुम लोगों को. गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास फॉर्मूला याद हो गया है. 5.85 इंटू 58.5 मल्टीप्लाई करके इंटू 100 करके सॉल्व करो. तुम्हें अप्रॉक्सीमेटली 0.1 मोल मिलेगा. कितना 0.1 मोल मिलेगा. ओके तो मोलैलिटी स्मॉल m मोलैलिटी. ओके मोलैलिटी स्मॉल m करके रिप्रेजेंट करते. इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.1 ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट. कितना है डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम्स. 500 ग्राम्स में दिया है. तो ये 500 ग्राम्स को तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है kg में. तो 500 ग्राम्स है डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो तुम्हें kg में मिलेगा. कितना मिलेगा 0.5 kg. कितना मिलेगा 0.5 kg. ये क्या है मोल्स पर kg. ये है तुम्हारा आंसर. समझ में आया. दैट इज 0.2 मोलैलिटी या मोल्स पर kg. दैट इज़ योर आंसर फॉर द मोलैलिटी. ऐसे कैलकुलेट करते हैं. गॉट. सो मोलैलिटी इट इज़ यूज्ड इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड मास ऑफ द सॉल्वेंट इज ऑलवेज इन किलोग्राम्स kg बट नॉट इन ग्राम्स. याद रखो इट शुड बी ऑलवेज इन kg. kg में ही याद रखो. उसको ग्राम्स में तुम्हें नहीं लिखना चाहिए. ओके अगर ग्राम्स में जैसे दिया है वैसे करोगे ना तो आंसर फाइनली रॉन्ग आ जाएगा. फर्स्ट उसको कन्वर्ट करो. अगर कन्वर्ट करने नहीं हो रहा है ग्राम्स में ही है तो इधर ऊपर इंटू 1000 करो. ये भी चलेगा. दोनों में से कौन सा भी एक चलेगा. समझ में आया. आइदर यू कन्वर्ट और यू फाइनली मल्टीप्लाई द फॉर्मूला विथ इंटू 1000. दोनों में से एक कौन सा भी. नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन.
मोल फ्रैक्शन क्या होता है देखो, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट इन द सोल्यूशन. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिंगल कंपोनेंट with the total number of moles of all the components in the solution. कैसे कैलकुलेट करते हैं देखो, moles of component A एक्स ए होता है मोल फ्रैक्शन एक्स ए, बी का एक्स बी होता है सिमिलरली फॉर बी, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द कंपोनेंट. एक एग्जांपल मैंने इधर दिया है, देखते हैं. देखो, a solution contains 2 moles of glucose and 3 moles of water. total moles first कितना आएगा, that is glucose plus water 5 moles है. मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ये मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन. ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू एक्स, ग्लूकोज इज इक्वल टू कितना है, सिर्फ ग्लूकोज कितना है 2 है आउट ऑफ टोटल 5 इन, ओके, विच इज इक्वल टू 0.4. सिमिलरली वाटर कितना है, 3 पार्ट्स दिया है, 3 मोल्स दिया है, 3 मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स 5 मोल्स, ऐसे कैलकुलेट करते हैं. फॉर एनी सॉल्यूशन जब तुम लोग क्या करोगे, सारे मोल फ्रैक्शन ऐड करोगे तो उसका रिजल्ट तुम्हें कितना मिलेगा, टोटली इक्वल टू 1 मिलेगा. कितना है, टोटली इक्वल टू 1 मिलेगा. सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1. याद रखो, ये है मोल फ्रैक्शन. नेक्स्ट नॉर्मेलिटी, जस्ट बेसिक आइडिया चाहिए तुम्हें, ज़्यादा इसके बारे में अभी नहीं है, 12th में सॉल्यूशन चैप्टर में आएगा. सो नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. सेम मोलैरिटी के जैसे ही है नॉर्मेलिटी, बट इधर हम लोग ऊपर क्या लेते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं. देखो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेते थे, इधर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर्स. और इसका यूनिट क्या है, इक्विवेलेंट पर लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर. इधर मैंने सारे इसका यूनिट्स दिया है. देखो, ग्राम इक्विवेलेंट मतलब क्या है, मोलार मास बाय एन फैक्टर, एंड एन फैक्टर इट इज़ नथिंग बट इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन. तुम्हें रिएक्शन पता रहना चाहिए, जैसे कि एन फैक्टर तुम्हारा क्या हो सकता है, H प्लस OH माइनस आयॉन्स. ओके, अगर तुम्हारा एसिड बेस टाइप ऑफ रिएक्शन है तो उस पर हम लोग ग्राम फैक्टर H प्लस या क्या एन फैक्टर, सॉरी ग्राम फैक्टर नहीं, एन फैक्टर H प्लस या OH माइनस आयॉन्स रहते हैं, दैट इज नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस आयॉन्स. रिडॉक्स रिएक्शन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, कि कितना इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में ट्रांसफर हुआ है वो उसको बोलते हैं. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है तो चार्ज ऑन द आयॉन लेते हैं हम लोग, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है तो नंबर ऑफ आयॉन्स रिप्लेस्ड, वो होता है हमारा एन फैक्टर होता है. समझ में आया, एन फैक्टर. तो इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन. एग्जाम्पल, अगर H2SO4 में एसिड बेस रिएक्शन के केस में एन फैक्टर 2 होता है, 2 रिप्लेसेबल H प्लस आयॉन्स. कितने H प्लस आयॉन्स रिप्लेस होते हैं, 2 H प्लस आयॉन्स रिप्लेस होते हैं. H2 है ना, इसीलिए 2 H प्लस हम लोग उसको 2 लेते हैं. मोलार मास डिवाइडेड बाय 2 करते हैं. मोलार मास, अगर मोलार मास इसका है सपोज 30 करके लेके चलते हो, नहीं है उतना, डिवाइडेड बाय 2 करके लेके चलते हैं 15. ये होता है तुम्हारा ग्राम इक्विवेलेंट, 15 इक्विवेलेंट बोलते हैं हम लोगों. समझ में आया, दैट डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन द लीटर, ऐसे कैलकुलेट करते. चाहे तो 1-2 क्वेश्चन आई विल जस्ट इन्वॉल्व इट इन द नेक्स्ट दिस न्यूमेरिकल केस. ओके, तो नेक्स्ट इधर देखो, वी हैव स्टडीड अबाउट मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मेलिटी. एंड दे आर, मोलैरिटी इट इज़ यूज्ड फॉर वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशंस इन योर टाइट्रेशंस एंड ऑल, एंड मोलैलिटी इट इज़ यूज्ड इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स, एंड मोल फ्रैक्शन फॉर आइडियल सोल्यूशन प्रॉब्लम्स. ओके, नेक्स्ट वी आर कमिंग टू डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी. ये क्या होता है देखते हैं. डेंसिटी is nothing but mass
कंटेंड इन यूनिट वॉल्यूम, मास इन यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी तुम लोगों को पता है क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो kg मीटर क्यूब, ऐसे ये भी बोल सकते हो। समझ में आया? इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। मोर डेंस द सब्सटेंस, they have more mass in the given volume, and density it depends on temperature and pressure। ये याद रखो, ये क्वेश्चन ना इधर छोटे छोटे पॉइंट से ही तुम लोगों को MCQ क्वेश्चन बनाते हैं। डज डेंसिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऐसे करके। ओके, सो डेंसिटी इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। मोलैरिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बट मोलैरिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। याद रखो, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ एयर मैंने दिया है। ओके, नेक्स्ट आता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी ये क्या होता है? It is also called as specific gravity, and it is the ratio of density of substance to the density of water। क्या है? with respect to, हम लोग water लेते हैं, with respect to water, density of any substance with respect to water at 4 डिग्री सेल्सियस हम लोग लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। एंड इट इज़ एन रेशियो, इट डज नॉट हैव एनी यूनिट। याद रखो, इट डज नॉट हैव एनी यूनिट। अगर तुम्हारा रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 है, देन वी कैन से द सब्सटेंस इज डेंसर देन वाटर। अगर लेस देन 1 है तो सब्सटेंस इज लाइटर देन वाटर। समझ में आया? रिलेटिव डेंसिटी हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ द वाटर लेते हैं एट 4 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। डेंसिटी हम लोग रो करके बोलते हैं, RH रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ओके, kg मीटर पर क्यूब या फिर ग्राम पर ml लेते स्मॉल क्वांटिटीज में। मास, वैसे ही मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इस तरफ लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का भी मिलेगा। एंड रिलेटिव डेंसिटी इट डजेंट हैव यूनिट, फार्मूला दिया है मैंने। समझ में आया? यूनिट कन्वर्शंस मैंने इधर टेबल दिया है, जस्ट गो थ्रू दिस टेबल, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कन्वर्शन टेबल। ओके, कि लीटर से मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, ग्राम से किलोग्राम में, मैंने सभी इधर इंक्लूड किया है। देखो, मीटर क्यूब से ml या लीटर में कन्वर्ट करना है तो इधर दिया है मैंने। सेंटीमीटर क्यूब से ml या लीटर में कन्वर्ट करना है तो ये सभी मैंने कन्वर्शन इधर दिया है। कन्वर्ट करके सॉल्व करो जब भी सॉल्व करना है। ओके, सो दिस completes our chapter and this is the important formula sheet and conversion table. You can just go through this, the things which already we have studied, like mole concept, mole relationships, okay, like your number of particles, volume, how to calculate mass from mole, next percentage composition, empirical formula, molecular formula, density, concentration. Here this side, on the right side I have given here basic units like for time, volume, temperature, mass and all. बेसिक स्टोइक्योमेट्री आई हैव इंक्लूडेड। गैस लॉ, ओके, बॉयल्स लॉ क्या है? गैस लॉ, 3 गैस लॉ आते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे-लुसैक्स लॉ। गे-लुसैक्स लॉ ऑलरेडी हमने फर्स्ट टॉपिक में, हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया है, दैट इज़ रिलेटेड टू प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर एंड टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ इट इज़ रिलेटेड टू प्रेशर एंड वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ इज़ रिलेटेड टू वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ऐसे। ओके, ये तुम्हें अभी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट ईयर सॉल्यूशन चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर, बहुत है ये। एक बार जस्ट यू गो थ्रू इट। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंटली कन्फ्यूज्ड कॉन्सेप्ट्स आई हैव गिवन, कंपैरिजन टेबल्स, फिजिकल चेंज वर्सेस केमिकल चेंज, एलिमेंट वर्सेस कंपाउंड वर्सेस मिक्सचर। आई हैव गिवन इन द फॉर्म कंपैरिजन टेबल इन द फॉर्म ऑफ टैबुलर कॉलम, मास वर्सेस वेट, एटम, व्हाट इज एटम, what is molecule, what is ion,
you can just stop and see it. You can just pause the video and go through this. What is the difference between molarity and molality? Okay, याद रखो, molarity depends on temperature, molality does not depend on temperature. ये question बहुत repeat होता है, every year this question repeats and every student makes mistake in this concept. याद रखो ये वाला. Next, empirical formula and molecular formula. Some memory tricks to remember that units, conversion units, rule for significant figures, mole relationship, gas volume relationship at standard temperature and pressure. Okay, so this completes your chapter, that is some basic concepts of chemistry. If you have any doubt, please do write in the comment section. Okay, and the first lecture of this chapter is been attached in the description box. The link of the first part is attached in the description box. Also, I will add the card of the first video. Okay, first lecture video. So just say me, just follow my YouTube channel, subscribe to my YouTube channel for more video lectures on chemistry, physics, biology of class 11th. Okay, you can just watch the series of each and every chapter explanation, MCQs, case study question and previous year questions and important questions as well. So subscribe to my channel Class Excellence and do continue watching the videos of more lecture. Thank you.